हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विथ मानवी। आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। इन आवर लास्ट सेशन जिसमें हमने एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस किया, आज के इस सेशन में हम सर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एक्सपोनेंट ऑल्सो। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्ट्स? इफ़ a is rational number and n is a positive integer such that the nth root of a is an irrational number, then a raised to the power 1 by n is called a surd. A is a rational number and n in which nth root of a, okay, is equal a raised to power 1 by n. This is called surds. Okay, a raised to power 1 by n, this is called surd. For example, root 5, root 2, root 3, these are called surd. Root 5 is equal to, you can write like this, 5 raised to the power 1 by 2. Root 2, 2 raised to the power 1 by 2. Okay, these are called surds. Okay, if nth root of a in which a is surd, then n is known as order of surds and a is known as radicand. Here nth root, this is called order of surds and a is called radicand. Okay, every surd is irrational number but every irrational number is not a surd. हर एक सर्ट इरेशनल हो सकता है लेकिन एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट सर्ट. फॉर एग्जाम्पल, रूट 3, रूट 2, रूट 5. ओके, these are called surds. But you know, irrational numbers are like terminating, non-terminating and non-terminating, recurring. Okay, so हम नहीं कह सकते कि every irrational number is a surd. Only every surd is irrational numbers. Okay, here the irrational root of a positive rational number is called surd. Here nth root of a is surd if n is a natural number bigger than 1. Okay, and a is a positive rational number, and where when we convert nth root of a which is irrational number. Okay, so irrational root of a positive rational number is called surds. For example, root 7 and cubic root of 11, cubic root of 9, these are called surds. But this number is not called surd because when root 16, when बिकॉज इसमें रूट फॉर्म में क्या है 4. सो हम अगर हम 16 को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, जिसमें हेयर 4 फॉर्म्स ऑफ 2. सो आंसर इज 2 विच इज़ रैशनल. सो हम नहीं कह सकते हैं कि दिस नंबर इज सर्ड. ओके, नाउ nth root of a where n is known as order, this sign is known as radical, and a which is rational number and irrational root, okay, which is called radicand, like this. Nth root of a where irrational root of a positive number is called surd. Irrational root of a positive rational number is called surd. Now we will discuss about types of surds. Okay, so first is quadratic surd. A surd of order 2 is called a quadratic surd. Surd जिसमें कि order of surd क्या होगा 2, और 2 कभी भी शो नहीं किया जाता. ओके, सो एनी टाइम व्हेन अ नंबर like this, so we have to be understand, so the order of surd is 2. Okay, next is cubic surds. A surd of order 3 is called a cubic surd.
For example, root 4 here, order of surd is 3. So we can say that this is a cubic surd. Okay, this is a cubic surd. Root 7 here, the order of surd is 3. So this is a cubic surd. Next is biquadratic surd, a surd of order 4 जिसमें order क्या होगा 4 होगा. This is called biquadratic surd. For example, रूट 15 आप देख सकते हो, इसमें ऑर्डर क्या है 4. सो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज बाइक्वाड्रेटिक सर्ड वेयर ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 4. ओके, नेक्स्ट इज प्योर सर्ड्स, अ सर्ड्स which has unity only rational factor, the other factors being irrational is called a surd. आप देख सकते हो ऐसे सर्ड्स को हम सर्ड्स which has unity only as rational, the other factors being irrational, it's called a pure surd, जिसमें कि आप नंबर ये जो नंबर्स हैं सिंगल इरेशनल्स हैं, इसमें कहीं भी इस तरह की वैल्यू नहीं लिखी गई है. ओके, ओनली नंबर्स आर लाइक दिस. सो ऐसे सर्ड्स क्या होते हैं, प्योर सर्ड्स, जिसमें कि उनके साथ कोई भी रैशनल वैल्यू नहीं होती है. ओके, मिक्स सर्ड, अ सर्ड विच हैज़ अ रैशनल फैक्टर अदर देन यूनिटी, द अदर फैक्टर्स बी इरेशनल इज कॉल्ड अ मिक्स सर्ड. जब भी एक सर्ड में इरेशनल फैक्टर के साथ रैशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्स सर्ड. आप देख सकते हो रूट 3 के साथ रूट लाइक दिस, I mean 2 root 3. Here rational factor also involves. So हम कह सकते हैं this is a mixed surd. Okay, like this, like this. Next is monomial surds. A surds consisting of only one term is known as a monomial surd. ऐसे surds जिसमें सिर्फ one term होते हैं, like root 2 only one term, root 5, root 11 एंड क्यूबिक रूट ऑफ 11. ओके, इस तरह के सर्च क्या कहलाते हैं, मोनोमियल सर्च, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म. नेक्स्ट इज कंपाउंड सर्च, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सिंपल सर्च और द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड अ सर्च इज कॉल्ड अ कंपाउंड सर्च. ऐसे सर्च जिसमें कि एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, आई मीन जिसमें कि जो भी टर्म्स होते हैं रैशनल, इरेशनल, प्लस माइनस में सब कुछ मिक्स होता है, लाइक दिस. आप देख सकते हो 4 रूट 2 प्लस रूट 5. हेयर सर्ट्स में रैशनल फैक्टर भी हैं एंड ऑल्सो साइंस मीन्स इसमें टर्म्स वन मोर देन वन है, और इसमें साइंस प्लस माइनस रैशनल फैक्टर्स, इरेशनल फैक्टर्स सब इन्वॉल्व है. ओके, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सर्ट. नेक्स्ट इज बाइनोमियल सर्ट, the compound surds consisting of only 2 terms called binomial surd. ऐसे सर्ड्स जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं, एनी 2 टर्म्स. ओके, लाइक दिस, कोई भी 2 टर्म्स होंगे, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड्स. ट्राइनोमियल सर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल सर्ड्स. ऐसे टर्म्स जिसमें 3 टर्म्स हों. ओके, आप देख सकते हो यार 1 2 3 टर्म्स कंसिस्टिंग. ओके, सो जिसमें 3 टर्म्स होंगे, ऐसे सर्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल सर्ट्स. नेक्स्ट इज पोनोमियल सर्ट्स. पोनोमियल सर्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 टर्म्स. 2 टर्म्स से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 4, सिर्फ मोर देन 2, लाइक दिस. आप देख सकते हो दिस इज कंप्लीट. इसमें आप 1 2 3 4, this expression is consisting 4 terms. Okay, this is called polynomial surd. Next is conjugate surds, the binomial surds which differs only in sign between the terms connecting them are called conjugate surd. आप देख सकते हो इसमें रूट 3 प्लस रूट 2. ओके, and root 3 minus root 2. So root 3 minus 2 is a conjugate surd of root 3 plus 2. आप कह सकते हो this one is a conjugate surd of this and this one is conjugate surd of this. Why? Because इनमें नंबर्स वैल्यू सेम होती है, सिर्फ इनमें साइन डिफरेंट होते हैं. ओके,
आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट सर्ट. नेक्स्ट, like and unlike surds. Surds having same irrational factors are called similar or like surds. Just look here, root 5, इसमें आप irrational factors सब सेम है, root 5, 8 root 5. रैशनल फैक्टर्स कुछ भी हो चलेगा लेकिन इरेशनल फैक्टर्स सेम होंगे. ऐसे सर्ट्स क्या कहलाएंगे? लाइक सर्ट्स, अदरवाइज अनलाइक सर्ट्स. Now we will talk about law of radicals. Law of, where first is nth root of a whole square n is equal to a. This one is okay. When you solve this, up nth root of n, okay. When you solve this, to n a, this is like this, and n already, so n cut, answer is a. Okay. Second is nth root of a into nth root of b. दोनों में आप देख सकते हो दोनों a और b दोनों डिफरेंट हैं लेकिन दोनों का रूट सेम है. ओके, हेयर इज n, सो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √3. ओके, इसमें ऑर्डर दोनों का सेम है विच इज़ 2. ओके, तो हम इसे इजीली इन अ वन रूट में लिख सकते हैं इस तरह से, एंड देन वी कैन सॉल्व ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू, हेयर आप फिर देख सकते हो रूट्स ऑर्डर सेम है और वैल्यू डिफरेंट है, तो उनको हम सेम तरह से लिख सकते हैं लाइक दिस. एनी ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए. आप देख सकते हो दोनों के ऑर्डर सेम है लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, तो हम चाहे तो उन्हें एक ही रूट में लिख सकते हैं लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो mth रूट ऑफ nth रूट a इज इक्वल टू n mth रूट ऑफ a इज इक्वल टू nth रूट ऑफ mth रूट a. हेयर m n दोनों ही एक डबल रूट में है, तो इन्हें किस तरह से शो किया गया है, विथ सिंगल फॉर्म लाइक m n n. तो हम इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं, मीन्स हम चाहें तो n को इधर और m को भी इधर लिख सकते हैं. ओके, इसे मैं एक एग्जांपल से सॉल्व कराऊंगी. ओके, नेक्स्ट इज pth रूट ऑफ a स्क्वायर n अपॉन pth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू, आप देख सकते हो इसमें ऑर्डर सेम है और रैशनल फैक्टर भी सेम है, बट उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है. ओके, और उनमें साइन क्या है, डिवाइड का साइन है, तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल 3 5 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 5 रेज़ टू पावर 2. ओके, आप देख सकते हो इसमें इनके ऑर्डर सेम है और दोनों में ही डिवाइड का साइन है और ये वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे लाइक दिस एंड प्रेजेंट इन अ वन रूट. 3 5 सेम है, सो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 5 रेज़ टू पावर 1. ओके, इस तरह से हम शो करेंगे. नेक्स्ट इज pth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n इंटू a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू, हेयर दोनों की इसमें एक्सपोनेंट सेम है और उनमें साइन क्या है, मल्टीप्लाई. एक्सपोनेंट की फॉर्मूला वाइज जैसे कि है a रेज़ टू पावर n इंटू a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू, अगर ये दोनों सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनके एक्सपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट ऑल्सो इसमें क्या है, pth रूट ऑफ a m इन ब्रैकेट में और m. ओके,
तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जैसे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a raised to the power n अगेन पावर m इज इक्वल टू एन एम, मतलब हमने इनके पावर्स को क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई करके शो किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ हम सपोज हमें कोई वैल्यू दी गई है लाइक दिस, ओके, 3 स्क्वायर होल स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 3, तो हम इनके एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 रेज़्ड टू द पावर 6, ओके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और दिस वन, ओके, इस क्वेश्चन को समझने के बाद ये समझना और इजी हो जाएगा, ओके। क्यूबिक रूट ऑफ रेशनल नंबर 2 इज अ सर्ड और नॉट। हमसे पूछा गया क्या ये नंबर सर्ड है कि नहीं है, ओके। सो फर्स्ट जैसे कि हम जानते हैं nth root of a is equal to a raised to the power 1 by n, and second is a raised to the power m डबल पावर n is equal to a raised to the power m into n। अगर इस तरह की आइडेंटिटी दी गई हो तो हम उनके एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। सो हेयर दिस इज अवर क्वेश्चन वेयर n is more than 1, okay, this one is order is more than 1, एंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है जिसमें √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, ओके। पूछा गया है कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी सर्च देखे हैं ऐसे ही देखे हैं जिसमें कि सिंगल रूट लगा होता है, ओके, लाइक दिस या लाइक दिस एनीथिंग एल्स, बट इसमें डबल रूट लगा है। सो हमसे ये पूछा गया दिस वन इज सर्ड और नॉट। सो हेयर आप देख सकते हो क्यूबिक रूट ऑफ रेशनल नंबर 2 इज इक्वल टू √2। आपने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया फर्स्ट, ओके, वेयर क्यूबिक रूट ऑफ होल स्क्वायर हेयर। सो आपने किस तरह से प्रेजेंट किया, √2 होल स्क्वायर 1/3 है, 1/n हमने क्या प्रेजेंट किया 1/3 इज इक्वल टू, अगेन अगर 2 है तो 2 को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन ए फ्रैक्शन फॉर्म 2 रेज़्ड टू द पावर 1/2, ओके, 2 रेज़्ड टू द पावर 1/2। नाउ आप ये देख सकते हो इसमें हेयर 2 एक्सपोनेंट, ओके, इन ब्रैकेट एंड इन दिस। तो हमने क्या किया, दोनों ही एक्सपोनेंट को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों के एक्सपोनेंट को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। 2 रेज़्ड टू द पावर 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6। सो हम चाहे तो इस नंबर को इस तरह से शो कर सकते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ सर्ड्स। अगर हम इसे इस तरह से शो कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ a surd. So if this number is surd, so we can say this number is also a surd, okay. Now some key points related with surds. First, only similar surds can be added or subtracted by adding or subtracting their rational parts. सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नंबर्स, ऐसे ही सर्ड्स को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि जिनके रैशनल पार्ट सेम होंगे, ओके। For example, 2√3 plus 5√2 minus 3√3, ओके। इसमें आप देख सकते हो साइन प्लस माइनस दिए गए हैं, लेकिन हम उन्हें ही प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके दिस पार्ट सेम होंगे, ओके, ये, ओके। √3 तभी हम उनके इन अदर्स रैशनल फैक्टर्स को अकॉर्डिंग टू द साइन हम उनको प्लस माइनस करेंगे। इसमें हम इसे वैसा का वैसा ही प्रेजेंट करेंगे। सो हेयर 2√3 माइनस 3√3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 इज़ 1, जो हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। सो हम क्या प्रेजेंट करेंगे, -3 प्लस
5√2। मीन्स कहने का मतलब है हम उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके सर्ट्स आपस में सेम होंगे, लाइक दिस √3 तभी हमने उनके अदर रैशनल फैक्टर्स को हमने प्लस माइनस किया है। ओके, हम √2 को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर √2 की जैसी और अगर वैल्यू हुई तो अकॉर्डिंग दैट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर like this, √2 into √3। आप देख सकते हो इनमें ऑर्डर कुछ नहीं है तो मीन्स क्या है, 2 है। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम आपस में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का साइन हो तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यही वैल्यू इस तरह से शो की गई हो तो हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एन ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज डिफरेंट, इसमें ऑर्डर ऑफ द सर्ट डिफरेंट। सो इफ़ ऑर्डर्स ऑफ द सर्ट डिफरेंट तो हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें फर्स्टली इनके ऑर्डर को सेम करना होगा, देन वी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड। Third is, if the surds to be multiplied or to be divided are not the same order, we first convert them to the same order and then we will multiply or divide. Okay, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, हम उन्हीं नंबर्स को आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे जिनके ऑर्डर्स ऑफ द सर्ट सेम होंगे, और अगर वो सेम नहीं होंगे तो फर्स्ट हम उन्हें सेम करेंगे एंड देन वी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ओके, लेकिन इनके सर्ट्स लेकिन इनकी ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम नहीं है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी ऑर्डर को सेम करेंगे एंड देन हम उन्हें सॉल्व करेंगे एज ए मल्टीप्लाई और डिवाइड। अदरवाइज जैसे अगर कोई नंबर इस तरह से है और इनके ऑर्डर भी आप देख रहे हो सेम है, 2 है, या कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन सेम होने चाहिए तो ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवाइड हो तो डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रैशनलाइजेशन। What is the meaning of rationalization? When the denominator of an expression contain a term with a square root or a number under a radical sign, the process of converting it into an equivalent expression whose denominator is a rational number is called a rationalizing the denominator. कभी भी denominator की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में है, उसे रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर अंडर रेडिकल साइन में हो, तो ऐसी वैल्यू को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड अ रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, 2/√3 हमारे पास ये नंबर है। ओके, आप देख सकते हो डेनोमिनेटर में √3 है, सो इसे विच इज़ इरेशनल। ओके, इसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो भी हमें आंसर रिसीव हो उसमें डेनोमिनेटर की वैल्यू रैशनल फॉर्म में हो। ओके, सो रैशनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस to convert the irrational form of denominator in form of rational. Okay, so now rationalizing the factors when the product of two irrational expression is rational, then each is said to be rationalizing factors of each other. ऐसे टर्म्स और फैक्टर्स जो एक रैशनल नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसे मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल, वी हैव 2 इरेशनल फैक्टर। ओके, अगर हम इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करें, देन द रिजल्ट इज 2 विच इज़ रैशनल। ओके, सो in this, according to this example, both of 2 are rationalizing factor of each other. Okay, अगर मतलब इस नंबर को रैशनलाइजिंग करने के लिए हमने उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई किया, सो दिस नंबर इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। दोनों ही एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। ओके, दीज आर कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर।
if search 1 into search 2 is equal to rational number, then search 1 and search 2 calling rationalizing factor of each other. जैसे मैंने अभी आपको बताया दो नंबर, ओके, लाइक दिस, सपोज 1 is 2, सेकेंड is 2 ऑल्सो, मीन्स ओ से रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ऐसे नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओके, तो नंबर इज़ 2, ओके, तो आपने देखा then sert 1 and sert 2 means root 2 and root 2 both are rationalizing factor of each other, दोनों ही एक दूसरे के rationalizing factor होंगे, okay. now a plus yb, आप देख सकते हो इसमें 2 टर्म्स हैं, ओके, ऐसे नंबर्स को अगर रैशनलाइजिंग करना हो तो विच वन इज़ द रैशनलाइजिंग फैक्टर, this one is a rationalizing factor. Why? Here value are same, okay, आप देख सकते हो both are same but sign is different, sign is different, so this one is rationalizing factor of this, or and this one is rationalizing factor of this, means दोनों ही एक दूसरे के rationalizing factor होंगे. If question is what which is the rationalizing factor of a plus yb, then the answer is this one, okay. And which one is rationalizing factor of this, then a plus y root b is a rationalizing factor of this number, okay. now rationalizing factor of a monomial set, monomial set means like this one single, okay. so one of the rationalizing factor of a raised to be power 1 by n is a raised to be power 1 minus 1 upon n. here the value is this, suppose अगर हम इसे सर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस वन, ओके. सो विच वन इज़ द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज 5 रेज़्ड टू द पावर 1 माइनस, मीन्स हम उसके ही एक्सपोनेंट को 1 में से माइनस करेंगे तो जो हमें आंसर रिसीव होगा दिस वन इज़ वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ओके. फॉर एग्जांपल 5 रेज़्ड टू द पावर 1 by 3 एंड 5 2 by 3 आर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर. हेयर 1 by 3 है, ओके, 1 by 3. सो 5 1 by 3, तो हम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर हमने निकाला तो क्या आएगा 1 माइनस 1 by 3, हम उसको सॉल्व करेंगे, ओके. देन द आंसर इज 2 by 3, सो द आंसर इज 5 raised to the power 2 by 3, okay. so 5 raised to the power 2 by 3 is rationalizing factor of 5 raised to the power 1 by 3, means दोनों ही एक दूसरे के rationalizing factor होंगे, okay. नेक्स्ट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ बाइनोमियल सर्ट्स. अगर 2 टर्म्स हों, ओके, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कैसे होंगे आप देख सकते हो. यार वेरी सिंपल, वेरी इजी, a प्लस रूट बी इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, मीन्स आप देख सकते हो उसमें वैल्यू सेम है, सिर्फ साइंस चेंज है. a प्लस रूट बी इज़ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a प्लस रूट बी इज़ दिस वन, मीन्स टर्म सेम है, सिर्फ साइन चेंज है. नेक्स्ट सेकेंड इज रूट ए माइनस रूट बी, सो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए माइनस रूट बी इज रूट ए प्लस रूट बी, सेम, सिर्फ साइन चेंज होंगे. मीन्स बायोमियल सर्ट्स में रैशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ टर्म सेम होंगी और उनके साइन चेंज होंगे, ओके. एग्जाम्पल रूट 3 प्लस रूट 5, so which one is rationalizing factor, this one is rationalizing factor. So according this one is a plus b and a minus b identity is equal to a square minus b square. so हमने इसको पूरा सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे जो हमें आंसर रिसीव हुआ विच वन इज -2, ओके. बट हेयर अगेन सेम क्वेश्चन बट साइन इज डिफरेंट एंड वैल्यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हेयर रूट 3 प्लस 5 एंड हेयर 5 प्लस रूट 3. तो जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम मेथड, आंसर इज 2, ओके. सो आप देख सकते हो इसमें दोनों ही आंसर रैशनल हैं, लेकिन
एक माइनस में है और एक प्लस में है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो कभी भी यूनिक नहीं होते। ओके, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी, डिफरेंट भी, एनीथिंग, बट नॉट यूनिक। ओके, सो √3 प्लस √5 and √3 minus √5 are conjugate of each other. So I hope ये सेशन आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा. So thank you very much, and in my next session I will be discuss about some practical question related with exponent and surds. Thank you. Goodbye.